So we're going to start the first series. Those of you who are not too familiar, the series will have 5 shots. And the first series announcement is in. The first shots have been fired. And right now in Trishul, the shooting range, the 50-meter 3P finals has just commenced. The jury used to be up and running with those calipers and scales to measure, whether it's a 9.6 or a 10.4. So fantastic. We have the first ranking list, which is out after the first series. And very crucial to have a good beginning, especially when you have such a tight contest. Because take it with a pinch of salt, because someone might be a shot ahead or behind. But let me tell you, after series 1, Chain Singh was in the lead. There you can see Chain Singh aligning that shot. Oh, what a turnaround we've seen with the series 2. So we have a new leader now, Neeraj Kumar. And after series 1 and 2, he was at a score of 101.8. India's finest in action there. Swapnil, Chain, Akhil. Of course, Akhil had a fantastic outing in the World Championships as well. Okay, so we're done with the first 3 series. And what a situation. This is Neeraj, of course, at 156.2. Well, this is the 3P event and they've moved to the second position. The first position was all about kneeling. The 3P, of course, is such a long event that often it is referred to as the marathon of shooting. So here's a look at the live scores. Once again, just warning you, there's a different shot count. You can see the ranks as well in the top left. And Neeraj and Goldie having a good outing. Neeraj holding on to that lead, 261.6. Goldie, 258.1 in second. And Tomar in third, 257.6. Calm and composed, getting that breathing in order. Of course, the fact that you're in a prone position and that you're getting as much rest as possible. So Neeraj Kumar right now with a total of 312.8 in the lead. Goldie Gujjar in second. Can they defend their position right now? What a beautiful sight. This is amongst the most beautiful sights in shooting. Just getting their sighters done and dusted. They have another 30 seconds left to get as many sighters as possible. Neeraj Kumar surprising perhaps everyone. The stop call comes through as we have Pratap on our screens, having participated in the 2024 Paris Olympics. Now we move on to the elimination and we have the single shots coming up. Here comes the command to load for the next shot. Is Neeraj going to be able to hold his own? Or will we see Pratap or Swapnil make a late charge? 4 shooters still in the fray as the shots are fired. Neeraj still holding his own. And a good, comfortable 3.5 ahead of Aishwarya. I heard 3 shots. Swapnil takes the bronze, bows out right now at this stage. But today is a battle between Pratap there on your screens and Neeraj Kumar. Waiting for that ultimate shot. And we have both the shooters done and dusted. And with that shot, the jury announces Neeraj Kumar as the winner of the gold medal. Takes the individual gold
in the men's 3P. What a phenomenal achievement for him. मैच की शुरुआत तो दिल्ली की टीम की ओर से और बैक पास के साथ शुरुआत। बहुत ही लंबा बैक पास, बिल्कुल डीप डिफेंस में लंबे क्लियरेंस के साथ गेंद को ओपोनेंट के हाथ में पहुंचाया। पहला अटैक बनता हुआ दिल्ली का, बहुत बढ़िया थ्रू पास, दो खिलाड़ियों के बीच से गेंद को पहुंचाया, लेकिन उतना ही बढ़िया डिफेंस और गेंद को साइड लाइन से बाहर किया। She's a fresh goalkeeper playing her first full match here in the bronze medal. It is an under pressure scenario. Give the man the go. She should have easily deceived. There was no problem whatsoever, and there you see, this is what I was talking about. And who else it could be? Delhi, who's been constantly hitting onto it. And who else it could be? Number 7, the top scorer, Devika Tanti, into the shot. I was talking about the same thing, that the goalkeeper Rupa Malik, playing her first match, playing her first full match here, is under pressure, and Devika Tanti took her on. स्क्रीन पर पश्चिम बंगाल की खिलाड़ी खुदीरुम रंजिता देवी हैं, जो कि गेंद के साथ है। उन्हीं के इस किक के साथ, शॉर्ट किक के साथ इस दूसरे हाफ की शुरुआत हो चुकी है और बढ़त चूंकि दिल्ली के पास है, तो निश्चित रूप से दिल्ली की यह कोशिश करेगी कि इस बढ़त को और मजबूत बनाया जाए। उधर पश्चिम बंगाल का यह प्रयास होगा कि पहले बराबरी का गोल किया जाए और उसके बाद फिर बढ़त प्राप्त की जाए। यहाँ पर एक कोशिश थी जरूर पश्चिम बंगाल की तरफ से दिल्ली के गोल में। इस वुमेन फुटबॉल में जो दोनों टीमों के बीच, दोनों ग्रुप में जो मुकाबले खेले गए, कुल मिलाकर 12 लीग मैचेस खेले गए। उन 12 लीग मैचेस में 47 गोल हुए और सेमीफाइनल के दोनों मैचेस मिला लिए जाएं तो कुल 14 मैचेस में 58 गोल, यानी एवरेज अक्षय 4 गोल हर मैच में हुए हैं। तो ये भी एक अच्छा संकेत है कि पॉजिटिव फुटबॉल चल रही है और आक्रामक फुटबॉल चल रही है, क्योंकि इतना जो एवरेज है 4 गोल पर मैच, वो वाकई बहुत अच्छा गोल का एवरेज है। लेफ्ट फ्लैंक से क्रॉस, हेडर और गेंद गोल के अंदर। बहुत ही बढ़िया दूसरा गोल पश्चिम बंगाल के लिए। नंबर 20, जिन्होंने इसके पहले भी गोल किया था, रंजीता देवी। लेफ्ट फ्लैंक से जो क्रॉस आया, तारीफ करनी होगी रंजीता की। और ये देखें, उनका एक अंदाज अलग ही तरह का, दर्शकों का अभिवादन किया, अपनी टीम के मेंबर्स का अभिवादन किया, डिफेंडर को बीट किया। ये देखें आप, क्रॉस और डिफेंडर से आगे निकल कर आए। गोलकीपर भी आगे आ गई थी दिल्ली टीम की संध्या कुमारी, लेकिन बहुत ही बेहतरीन अक्षय, बहुत शानदार हेडर रंजीता देवी का। स्कोर 2-1 पश्चिम बंगाल के पक्ष में। ये कांस्य पदक का मुकाबला 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड 2025 में महिला फुटबॉल के अंतर्गत तैयार किया गया। इस बार हेडर और स्कोर बराबर। नंबर 11 मौके की तलाश में थी और जैसे ही हल्का सा चिप शॉट आया, दौड़ती हुई गई गोलकीपर के बिल्कुल सामने और दिल्ली को बराबरी पर लाके खड़ा कर दिया है, जिन्हें चेंज करके भेजा गया था। होइनी हेड नंबर 11, दिल्ली 2 पश्चिम बंगाल 2। ये देखे हल्का सा चिप और गोलकीपर जैसे ही आगे आई, उनके पहले ही उन्होंने हेडर किया और गेंद को बहुत ही कंट्रोल के साथ गोल के अंदर पहुंचा दिया। अब इस कांस्य पदक का जो निर्णय है वो किया जाएगा पेनल्टी शूटआउट के जरिए। देखिए किस तरह से पहले हाफ में दिल्ली ने गोल किया था, उसके बाद दूसरे हाफ में गोल उतारा और फिर पश्चिम बंगाल ने एक और गोल किया, 2-1 की बढ़त प्राप्त की। फिर उसके बाद दिल्ली ने एक और गोल करके मुकाबले को फिर से 2-2 की बराबरी पर ला दिया। और अब पेनल्टी शूटआउट के साथ निर्णय निकाला जाएगा कांस्य पदक के इस मुकाबले का। और अब परीक्षा होगी दिल्ली की गोलकीपर की। अनीता उरांव अगली पेनल्टी किक लेने के लिए तैयार। क्या यहां पर से पेनल्टी शूटआउट में स्कोर की शुरुआत हो जाएगी? लंबी कद की खिलाड़ी हैं और जी हां,
शुरुआत हो गई, 1-0 की बढ़त पश्चिम बंगाल के पास। ये तीसरा अटेम्प्ट लेंगी। 1-0 की बढ़त है इस मुकाबले में इस समय पश्चिम बंगाल के पास। 2-2 से निर्धारित समय में मुकाबला बराबर। पेनल्टी शूटआउट से कांस्य पदक का फैसला। और बहुत आराम से, बहुत ही बेहतरीन लेफ्ट फुटर। जितनी तारीफ की जाए ज्योति की वो कम है, क्योंकि जिस अंदाज से उन्होंने दौड़ लगाई गोलकीपर को कुछ भी समझ में नहीं आया। पॉली मोंडल, गोल पर दिल्ली की संध्या कुमारी गोलकीपर। स्कोर 1-1। और एक और आराम से मारा गया, बिल्कुल रूफ में गेंद को पहुंचाया। नंबर 5 गोल करने में कामयाब पश्चिम बंगाल के लिए। और अभी अभी जो चौथा अटेम्प्ट लिया था गीतिका नेगी ने, नंबर 14, वो बहुत ज़्यादा बार से बाहर, और इस पर गोल हुआ तो ये मैच यहीं पर समाप्त हो जाएगा। और बहुत ही आराम से, बहुत आराम से लेफ्ट साइड में गेंद को प्लेस किया। नंबर 11 पश्चिम बंगाल की सुमिला चानू। इस गोल के सहारे इस मुकाबले को पश्चिम बंगाल की टीम ने निर्धारित समय पर 2-2 की बराबरी पर रहने के बाद 3-1 से पेनल्टी शूटआउट में जीतकर 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड 2025 में महिला फुटबॉल का कांस्य पदक अपने नाम पर कर लिया है। और यह है फाइनल मुकाबला उड़ीसा वर्सेस हरियाणा। और यह है उड़ीसा की टीम और ये टीम है हरियाणा की। बस शुरू ही होने वाला है, हो चुका है। और हम फिर से बता दें अपने दर्शकों को, ब्लू ऑरेंज कलर की जर्सी में उड़ीसा की टीम होगी और हरियाणा रेड और ब्लैक में देखी जा सकती है। तेज फुटबॉल की शुरुआत यहाँ पर से होने की हम उम्मीद कर सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक अच्छा मुकाबला देखने को मिल सकता है। एक ऐसी टीम जो कि गत बार की विजेता और एक ऐसी टीम जो कि पहली बार फाइनल में पहुंची है, तो दोनों ही टीमों को कम नहीं समझा जाता। एक अच्छा प्रयास यहां पर किया गया था पहले ही मिनट में, यह कोशिश, गेंद बाहर गई हालांकि सुष्मिता परिदा, लेकिन उनके पहले ही आगे खड़ी हुई थी हरियाणा टीम की फॉरवर्ड, जिन्होंने हेड तो किया था पर उनके सिर से लगने के बाद गेंद बैकलाइन के बाहर चली गई। 20वां मिनट चलता हुआ एक बेकार सा शॉट, जिसके लिए अपने खिलाड़ियों से माफ़ी मांगती हुई गोलकीपर सुष्मिता परिदा। ये देखें आप किस तरह से हेड किया था और वहाँ पर 2-3 खिलाड़ी पहुंचे थे। शायद ये फाउल होगा, जिस तरह से पुश किया गया था। और स्कोर लाइन अभी भी उड़ीसा 0 हरियाणा 0। पहले हाफ में कोई भी टीमें गोल नहीं कर सकी। स्कोर आपके सामने है, उड़ीसा 0 हरियाणा 0। और अब सेकंड हाफ की तैयारी। दोनों ही टीमें आपस में एक बार नेशनल गेम्स के इस आयोजन में भिड़ चुकी हैं, जिसमें उड़ीसा ने 2-1 से पराजित किया था हरियाणा टीम को। तो सेकंड हाफ की शुरुआत 38वें नेशनल गेम्स उत्तराखंड 2025 में महिला फुटबॉल के फाइनल मुकाबले की। लंबे पास के साथ फॉरवर्ड लाइन तक गेंद पहुंचाने की कोशिश, लेकिन डिफेंस मौजूद वहां पर, जिन्होंने गेंद को क्लियर किया, साइड लाइन के बाहर किया। और आक्रमण अब राइट फ्लैंक से धीरे धीरे बॉल पोजीशन में अपने रखती हुई हरियाणा टीम। फुटबॉल वुमेंस की उड़ीसा और पिछले नेशनल गेम्स में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हरियाणा अभी भी 0-0 पर। डिफेंस लाइन पर उड़ीसा, सेंटर लाइन के पास से एक लंबा पास हल्का सा चिप किया, शायद टॉप ऑफ द डी पर गेंद पहुंचाने की कोशिश। और मौका मिला है लेफ्ट फुटर, लेकिन बहुत कमज़ोर सा लेफ्ट फुटर, जिसके लिए कोई दिक्कत नहीं है उड़ीसा की गोलकीपर को, सुष्मिता परिदा। और जैसा अक्षय बता रहे थे, उन्होंने जब बात की थी टीम मैनेजमेंट से मैच के पहले, तो उन्होंने बताया कि यदि पेनल्टी शूटआउट में यह मुकाबला गया तो फिर सुष्मिता परिदा पर उन्हें पूरा विश्वास है। और देखना अभी समय है, क्योंकि पलक झपकते ही गोल होने में कोई समय नहीं लगता फुटबॉल के खेल में, और आखिरी समय पर तो खेल और ज़्यादा तेज़ हो जाता है। खाका, बढ़िया पास, क्रॉस। और यहाँ गोलकीपर हरियाणा की मुस्तैद थी अंशिका। दोनों ही गोलकीपर की अच्छी परीक्षा हुई है इस फाइनल मैच में, और सभी को इंतज़ार है उस विसिल का जिसके सहारे इस
मुकाबले को समाप्त घोषित किया जाएगा और उसके बाद पेनल्टी शूटआउट प्रारंभ होगा, जिसकी पूरी संभावना नजर आती हुई। लंबी बॉल डी के अंदर, हेडर, लेकिन गोलकीपर के पास आराम से पहुंचता हुआ सुष्मिता परिदा, अनुभवी गोलकीपर। और इस विसिल के साथ इस मैच की रेफरी, फील्ड रेफरी रंजीता देवी ने घोषणा की कि वुमेन्स फुटबॉल फाइनल 38वें नेशनल गेम्स उत्तराखंड 2025 का पूरा होता है उड़ीसा 0 हरियाणा 0 के स्कोर के साथ। Poonam Sharma taking her time. If she scores straight away, that will put a lot of pressure on Odisha, having missed that worst chance. And she scores comfortably. Comfortably work done by Poonam Sharma. She has opened the account as far as this penalty shootout is concerned. Haryana in the lead after first two shots. प्यारी खाका तैयार और वहां गोलकीपर तैयार अंशिका। और बहुत आराम से पेनल्टी लेने का जो अंदाज है, ये अनुभव कहलाता है आपका कि किस तरह से आप अपना अनुभव इस्तेमाल करते हैं ऐसे अवसर पर। और अब नंबर 2 जवाबनी टुडू, सेमीफाइनल में जिन्होंने गोल किया था, वे आई हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं उड़ीसा की ओर से। और इस बार गोलकीपर का सुंदर सेव, बहुत ही बढ़िया, लेफ्ट साइड में डाइव किया, जितना अनुमान था उनका वो बिल्कुल सही निकला। तो प्रेशर और बढ़ता जा रहा है, हरियाणा अब लीड कर रहा है। संतोष, क्या गोलकीपर बचा पाएंगी? गोलकीपर को चेंज किया है, नंबर 1 मंजू, और ये गोल के साथ ही हरियाणा ने इस मुकाबले को पेनल्टी शूटआउट में 2 के मुकाबले 4 गोलों से जीत लिया है। और 38वें नेशनल गेम्स उत्तराखंड 2025 में महिला वर्ग का फुटबॉल खिताब पहली बार फाइनल में पहुंचने वाली हरियाणा के नाम पर। शान ले, शौर्य का प्रमाण ले, गत्र सर्वश्रेष्ठ है मैदान में। और अगला इवेंट कैरिन का फाइनल मुकाबला, और इस समय ऑन द ट्रैक मेन एलीट कैरिन 5 लैप फाइनल मुकाबला। और बिल्कुल सबसे फास्टेस्ट इवेंट, और डनी राइडर मिस्टर केविन जो कोच हैं इंडिया के, वो इस समय, और इंडिया के टॉप स्प्रिंटर इस फाइनल कैरियर मुकाबले में भाग ले रहे हैं। एक 1 से 6 फाइनल मुकाबला कैरिन का, और काफी बढ़िया मुकाबला इस समय। और इस समय बहुत बढ़िया स्प्रिंट, और 22 सेकंडों का ये जो लैप था। और इस समय आप जैसे कहा वैसे हुआ, और अंडमान निकोबार के दोनों साइकिलिस्ट डेविड बैकम और इसो दोनों ने स्पीड अच्छी बना ली है, और बेल, और ये फिनिश हुआ। और बहुत बढ़िया मुकाबला रहा डेविड बैकम और इसो फर्स्ट सेकंड के लिए, मे बी फर्स्ट सेकंड के लिए, और हाथ खिलाकर खुशी जाहिर करते हुए, साथी खिलाड़ियों के साथ हैंडशेक करते हुए। और बहुत बढ़िया स्पीड, इस समय बहुत अच्छी स्पीड देखने को मिली। और डेविड बैकम ने जो है राइडर नंबर 1 डेविड बैकम, अंडमान निकोबार, जिसका नंबर भी 1, जर्सी नंबर भी 1 और पोजीशन भी 1, और गोल्ड मेडल डेविड बैकम ने अपने नाम किया है। और नेशनल गेम्स के फर्स्ट प्लेस हासिल की डेविड बैकम ने। शान ले, शौर्य का प्रमाण ले, गत्र सर्वश्रेष्ठ है मैदान में। और इस समय वीमेन एलीट ओमनियम 4, जिसमें कीर्ति कर्नाटका, चानिका असम, मीनाक्षी हरियाणा और स्वास्थी उड़ीसा, चारों साइकिलिस्ट इस समय ऑन द ट्रैक।
और काफी लंबी रेस होने वाली है वीमेन राइडर की। And after those 5 laps, let me tell you, the last lap, the points will be double. So the 5 will be 10. लैप स्टार्ट हो चुका है जिसमें ये पॉइंट्स डबल होने हैं और पहले नंबर पर भी मीनाक्षी चल रही हैं और उनके पीछे स्वास्थ्य सिंह ऊपर से आ गई हैं। अब देखना होगा कि ये कौन सा, और तीनों लड़कियां बिल्कुल इक्वल चल रही हैं। अब ये देखते हैं कि कौन सी लड़की ये पॉइंट्स लेती है और बहुत जबरदस्त कंपटीशन है और कीर्ति रंगास्वामी इस रेस में जीत चुकी हैं और सेकंड प्लेस पे स्वास्थ्य सिंह उड़ीसा की और थर्ड प्लेस पे मीनाक्षी हरियाणा की। शान ले, शौर्य का प्रमाण ले, गत्र सर्वश्रेष्ठ है मैदान में। ऑन द ट्रैक गोल्ड और सिल्वर के लिए फाइट अंडमान निकोबार और महाराष्ट्र की टीम के बीच में। And yes, it will be, that's the bronze medal match that you have seen. It was Orissa who outthrown Rajasthan. That was the team comprising of Swasti Singh, Barsarani Barik and Rejya Devi Khoirom. But at the moment, it will be the competition between Andaman and Nicobar and Maharashtra, the gold medal match. Yeah, and there we go. The blue versus the white and black is what we're competing for, and we'll be there in a podium today in all smiles as 3 of them from Maharashtra whistles past the commentary box. The bell also comes up, and that means the last lap will be in, and it will be Maharashtra, and will be now edging over to get. We will be in just tight corners to know who will be in there to put it free, and it is Maharashtra officially the gold medal winners of the women elite team sprint of 3 laps. And here we go, the punch among the cyclists to say that they are the champions, they're the gold winners of this gold medal match. Maharashtra, the girls in white and sky blue. Yes, there you go, right on your screen. Orissa bronze at 1 minute and 16 seconds. 4th place Rajasthan in 1 minute and 18 seconds. Silver 1 minute and 16 seconds for Andaman and Nicobar. शान ले, शौर्य का प्रमाण ले, गत्र सर्वश्रेष्ठ है मैदान में। ओमनियम के मुकाबले अपने चौथे दौर के यहाँ पर शुरू होने जा रहे हैं और हम देख रहे हैं ये वो स्टेट्स हैं, ये वो खिलाड़ी हैं जो कि इस ओमनियम में खेलते हुए नजर आएंगे। लैपों का सफर बहुत होगा, एक लंबी लैप, एक बड़ी लैप ट्रैक पर जिस प्रकार से इत्मीनान के साथ या 75 लैप्स उन्हें पूरे करने हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये एक लंबी दूरी की यात्रा इस ट्रैक साइकिलिंग के इवेंट में दिखलाई पड़ रही है। और जिस तरह से आज सुबह से मुकाबले हुए, अब जो शाम का समय चल रहा है वह स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक की दौड़। जो स्ट्रॉन्ग है ये तो आगे आना ही आना है, फिर भी अभी इसमें कौन ज्यादा आगे आएगा ये अभी हम देखना पड़ेगा। पदकों का सिलसिला था, पदक उन्होंने वितरित किए और जिस तरह से यदि हम देखें साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सभी पदाधिकारियों से उन्होंने मुलाकात की, वॉलंटियर्स से उन्होंने मुलाकात की और जितने सारी टीमें उनके करीब आ रही थी, जैसे जैसे उन्हें समय मिल रहा था उनके साथ वे मिल रहे थे। तो ये खिलाड़ियों के लिए भी एक अच्छा प्रोत्साहन है कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जहां पर यह राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता हो रही है वो उनसे मिल रहा है और कुल मिलाकर उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं।
अभी लास्ट लैप शुरू होने वाला है। हर्षवीर लीड पे है और ये बेल हो गई है लास्ट लैप में। इस लैप में पहली प्लेस लेने वाले को 10 पॉइंट मिलेंगे और सबसे अच्छा कंपटीशन दिनेश और विश्वजीत में है। विश्वजीत पंजाब के राइडर और दिनेश कुमार सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के राइडर है। और पहले नंबर पर अभी हर्षवीर सिंह जो बहुत लीड पे हैं और पीछे से साहिल आ रहे हैं और साहिल ने विश्वजीत को क्रॉस किया है और साहिल ने अपनी 3rd प्लेस कंफर्म कर ली है और विश्वजीत अभी भी पहले नंबर पर है। तो इस 25 किलोमीटर पॉइंट रेस और ओमनियम में पहले नंबर पर विश्वजीत फर्स्ट नंबर पर फिनिश किया और इनका अभी गोल्ड कंफर्म हो गया है। 3 नंबर के पायदान पर यहाँ पर सर्विसेज के साहिल नजर आ रहे हैं और विश्वजीत सिंह जिन्होंने के इस स्वर्ण पदक को अपने नाम पर किया और दर्शकों की तालियां, अभिनंदन विश्वजीत के लिए। शान ले, शौर्य का प्रमाण ले, कत्र सर्वश्रेष्ठ है मैदान में। मैच शुरू होने में बस कुछ ही क्षणों का समय बाकी है। निकी पुनाचा कर्नाटक के, उनका सामना हो रहा है सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के ऋषभ अग्रवाल से। And the return by Rishabh Agarwal finds the net. Strong first serve by Nikki Punacha of Karnataka. 15 love in the opening game of the first set. Karnataka versus Services Sports Control Board. Tremendous placement of the shot there, forehand side by the Karnatakan Nikki Punacha. 30 love. Again, strong first serve in control. 30 love. Another strong first serve. Nikki Punacha very well prepared coming into this semi-final. बहुत बढ़िया पॉइंट सेटअप किया, ब्रेक पॉइंट बचाया ऋषभ अग्रवाल ने। सर्विस गेम जीतने का मौका। सर्विस गेम अपने नाम किया है। बढ़िया खेल का प्रदर्शन, नियंत्रित खेल का प्रदर्शन ऋषभ के द्वारा इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। Tremendous first serve, almost an ace. Rishabh managing to get a racket to it. It's game point now for Nikki Punacha. And a good judgment call there by Nikki Punacha. Trying that lob from the baseline, Rishabh Agarwal. A good volley by Nikki, and Rishabh really just wanted to place it on the far left corner of the court. Rishabh has really found Nikki's weakness in the second set and is exploiting it to maximum effect in the final set of the match. Oh, a good running in volley by Rishabh Agarwal, and game, set and match. Rishabh Agarwal with the win. An absolutely thumping third set by Rishabh Agarwal. Make Nikki run around and really just impressed all the viewers with his gameplay. Rishabh Agarwal of the Services wins the first match of this men's team semi-finals.
मैच की शुरुआत इशाक इकबाल सर्विस करेंगे। नेट के करीब आकर के बेहतरीन बैकहैंड क्रॉस को ड्रॉप शॉट खेला बिल्कुल नेट के पास। तो पहला पॉइंट कर्नाटका के पक्ष में। प्रज्वल देव को एक लकी पॉइंट एक तरीके से हासिल हुआ। बेसलाइन से पीछे आसानी के साथ पहले ही गेम पॉइंट को कन्वर्ट किया गया इशाक के द्वारा। प्रज्वल देव अब सर्विस करते हुए नजर आएंगे, कर्नाटका के खिलाड़ी। Of Karnataka would be serving. And trying to return that deep 15 love. Ishaq Iqbal of the Services Sports Control Board on the forehand. Tremendous first serve. Outstretched backhand return by Ishaq, and then on the half volley. Strong first serve again, and a weak forehand return. Holding serve, Prajwal Dev. It's 2-all in the second set. कि अपने प्रतिद्वंदी को पीछे छोड़ा जाए। फिलहाल मुकाबला बराबरी पर दूसरे सेट में। love. 15 लव। तो सेट पॉइंट गंवाए हैं इशाक ने। ये डबल फॉल्ट जिसके आधार पर इस ब्रेक पॉइंट का फैसला होता हुआ प्रज्वल देव जरूर ये फील कर रहे होंगे कि पिछले पॉइंट पर उन्हें जो अंक मिलना चाहिए था वो मिला नहीं था। बढ़िया पॉइंट सेटअप किया, क्रॉस कोर्ट के द्वारा उसे कन्वर्ट किया और अब 2 गेम पॉइंट। क्या बेहतरीन एस लगाया है और इसके साथ ही सर्विस गेम को जीता। 5-2 की बढ़त उन्होंने हासिल कर ली है। Double fault point for Prajwal Dev. Love 15. Strong forehand return by Prajwal Dev. Long rally, but the backhand of Prajwal Dev finds the net. Tremendous serve, ace, and Prajwal Dev wins the match, 2-1. Strong comeback by the Karnatakan. Ishaq had won the second set, but Prajwal Dev of Karnataka coming back to win the third set. लाल रंग की जर्सी में है पंजाब की टीम, जबकि मणिपुर की टीम सफेद रंग की जर्सी में। पूल बी का ये मैच है, निगाहें रखिएगा। इस बीच शुरुआत हो चुकी है इस मुकाबले की और वहां पे देख सकते हैं पंजाब की टीम रेड कलर की जर्सी में है। शुरुआत से पंजाब आक्रमण बनाने की कोशिश। मणिपुर इस समय बॉल पे साथ बहुत खूबसूरती के साथ अच्छी पासिंग, बढ़िया लिंक अप प्ले, अच्छा इस समय स्ट्रैटेजी।
बहुत अच्छी स्पीड है इस टीम के पास। जी हाँ, कोठाजीत सिंह मौजूद थे, अहम खिलाड़ी हैं मणिपुर के, लेकिन वापस बॉल अपने नियंत्रण में ली है इस समय। बॉल लेकर के प्रदीप सिंह, तेज तर्रार खिलाड़ी, गोलकीपर आए लाइन छोड़ करके, मौका हो सकता था, एंगल को ब्लॉक किया जर्सी नंबर 11 ने। क्या कहने, लुआंग मौजूद थे, एक सुनहरा मौका यहाँ पे बना रही थी पंजाब की टीम। क्या वो रन था मिडफील्ड से। Brilliant stuff. And into a striking circle from the left flank, Punjab. The spicy red chili dress from the boys. And a penalty corner option. Made the mistake over there. And that is why the reason we have got the penalty corner to witness here from the side of Punjab. Gursaibatjit Singh to take the injection. First goal opportunity here. First side of Punjab once again. Injection, trap, drag. Beautiful. First goal here. Punjab takes the lead. Punjab takes the lead. The boys in red. And look at the injection. That's beautiful. And then the trap. And then the beautiful drag flick. तीसरा क्वार्टर का खेल शुरू हो गया है मणिपुर और पंजाब के बीच। एक गोल की बढ़त है यहाँ पर पंजाब के पास। When you go for the hit, when it comes to PCs, you should maintain the height of the ball. Moving so much good. Big opportunity to get the second in position. That's a goal signal here come out from umpire. What is happening there? The attacker is down, the goalkeeper is down. Let's have a look. That's goal. That has hit the goal post very clearly. Second goal has come right at the initial phase as well. A lovely mark. अजीत सिंह बहुत तेजी के साथ बॉल लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लुआंगी के बॉल बढ़ा दिया है, लेकिन वहां पे गिर पड़े। एक मौका मिला था। कोठाजीत सिंह बहुत तेज तर्रार खिलाड़ी है, इस बार पंजाब के खिलाड़ी बॉल लेकर आगे बढ़ते हुए। लवनूर सिंह ने बॉल को बढ़ा दिया। यहाँ पर सुंदर पास हर्षदीप सिंह के लिए, लेकिन गेंद से छीन गई। गेंद एक बार फिर यहाँ पे पंजाब के खिलाड़ी के पास, और ये पेनाल्टी कॉर्नर का इशारा यहाँ पर गुरबाज सिंह का। देखिए यहाँ पर किस तरह से पेनाल्टी कॉर्नर अर्जित किया गया। यहाँ पे लवनूर सिंह को गलत तरीके से रोका गया। 2-0 की बढ़त पंजाब के पास 3 क्वार्टर के बाद। पंजाब लगातार आक्रमण बोल रही है, चाहे राइट फ्लैंक की बात करें या लेफ्ट फ्लैंक की बात करें। पंजाब के इस वक्त यहाँ पर जसविंदर सिंह के पास बॉल लेते हुए बॉल को बढ़ाने की कोशिश की विशाल यादव के लिए। अभी एक फ्री हिट मिलता हुआ, फ्री हिट छोड़ दिया वहाँ पर साथी खिलाड़ी के लिए। वहाँ हरजीत सिंह ने फ्री हिट लिया है। बेहतरीन पास डी के अंदर, बिल्कुल बॉल लेके घूम गए वहाँ पर। बहुत अच्छा लय में आती हुई लेने आने की कोशिश चिलंगसाना सिंह के लिए बॉल कप्तान, लेकिन गेंद उनसे छीन गई है। सफलता मिली है पंजाब के खिलाड़ी को। बहुत तेजी के साथ निकलती हुई पंजाब की टीम। अच्छा पास, यहाँ पर मौका है इस वक्त। गोलकीपर की तारीफ करनी होगी। हेमाम धनराज सिंह ने लाइन छोड़कर आगे आए, एंगल ब्लॉक किया। शानदार काउंटर अटैक पे नजर डाले क्या कुछ हुआ वहां पे। खूबसूरती के साथ टॉमाहॉक लगाया रिवर्स सीट से। जैसे नंबर 5 उज्जवल सिंह मौजूद थे। कमाल की गति नजर रखते हैं, बॉल पे कंट्रोल कितना कमाल का है। स्किल देखिए, और सीधे विपक्षी खेमे में देखना होगा। स्ट्राइकिंग सर्कल के अंदर 2 खिलाड़ी उन्हें मार्क कर रहे हैं। पेनल्टी कॉर्नर बना लिया है। शानदार इस समय प्रभजोत सिंह की ताकत देखने लायक है। उन्होंने ट्रेवल किया बाएं तरफ से और देखिए डी के अंदर पहुंचे और वहां पेनल्टी कॉर्नर अर्जित किया। ये कमाल है यहाँ पर प्रभजोत सिंह का। लवनूर सिंह इस समय देखना होगा क्या रणनीति रहेगी। गोलकीपर पे निगाह है हेमाम धनराज सिंह के, और देखना होगा इंजेक्शन आया। अगेन पेनल्टी कॉर्नर, क्योंकि फुट में टकराई। एक बार फिर प्रभजोत सिंह यहाँ पर इंजेक्ट करने के लिए तैयार। जाबाज खिलाड़ी पंजाब का इंजेक्ट किया, बॉल को रोका गया और यहाँ पर पोल से टकरा के गेंद। कमाल का बहुत शानदार सेव है गोलकीपर हेमाम धनराज सिंह। फुल लेंथ डाइव दाहिनी तरफ देख सकते हैं वापस इस समय इस प्रयास को। ये वो खूबसूरत अगर बात करें प्रयास था, क्या कहने। वक्त अब धीरे धीरे इस समय मुश्किलों की तरफ, समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है इस समय। यहाँ पे पंजाब की टीम ने मुकाबला जीत अर्जित की है। मेंस कैटेगरी का यह मुकाबला पंजाब अब पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पे आ जाएगी। 1 जीत और 1 हार इनके नाम है। उत्तर प्रदेश का मुकाबला होने के लिए जा रहा है महाराष्ट्र से वंदना कटारिया हॉकी स्टेडियम हरिद्वार। यूपी वर्सेस महाराष्ट्र, 2 बड़ी टीमें, जबरदस्त माहौल है। क्या कहने आक्रमण पे इस समय। बॉल को बढ़ा दिया यहाँ पर चंदन यादव के लिए। चंदन यादव ने एक साथी खिलाड़ी के लिए बॉल को बढ़ाया। लंबा हिट अपने क्षेत्र में खेलती हुई उत्तर प्रदेश की टीम। डायगोनल पास और अब समांतर पास मध्यरेखा को क्रॉस करती हुई यहाँ पर उत्तर प्रदेश के वेंकटेश
राहुल राजभर, और यहाँ पर एक अच्छा मौका जिस तरह से बहुत तेजी के साथ लेके निकले थे, और ग्रीन कार्ड लेकिन हर्षित अयप्पा के द्वारा। जी हाँ, हर्षित अयप्पा ने ग्रीन कार्ड दिया इस समय और प्लेयर को 2 मिनट के लिए बाहर जाना होगा। देखिए ना, तौर पे महाराष्ट्र की टीम शानदार लिंकअप प्ले दिखा रही है, बेहतर कॉम्बिनेशन नजर आता हुआ। एक बार फिर से रोहन पाटिल, पिछले मुकाबले में गोल कर आए हैं रोहन पाटिल। The side of Maharashtra, both of them giving it through from the left flank, getting into the striking circle, well and good. Could be the first goal. That could be the first goal. Back-to-back good save. Back-to-back good save has come. We have got to see here a penalty corner that is awarded for the side of UP. Not at all happy, Maharashtra. Again, Vishnukant with the injection. Atul with the trap, with the injection, with the drag flick. Faraz Khan once again. Another penalty corner. Vishnukant gets the green card here and has to go back. We have the replacement here to do the injection. Injection, trap, and then the drag flick once again. But that has been defended. Goalkeeper once again. Wow, what a wonderful deflection. Wonderful defense from the goalkeeper. The barrier has been so good. The barrier, the block has been so good. Puts a dive at the first, and then look at that. Oh, it gets off very immediately. देवेंद्र सुनील वाल्मीकि जो कि इंटरनेशनल प्लेयर हैं, देवेंद्र सुनील वाल्मीकि अपना टीम को कितना कंट्रीब्यूट करते हैं आपने देखा होगा। शिवम आनंद, आपको बता दूं, बात करें, ये एशिया कप, जूनियर एशिया कप खेल चुके हैं, बहुत अहम खिलाड़ी हैं शिवम आनंद। लेकिन बॉल पे इस समय जर्सी नंबर 27 महाराष्ट्र के लिए अनिकेत गौरव। अनिकेत, यूपी के लिए मौका, जर्सी नंबर 7 नजर आ रहे आदित्य सिंह। आदित्य सिंह देवेंद्र वाल्मीकि को बीट किया, इस समय सुनहरा चांस है जर्सी नंबर 14 के लिए। केतन कुशवाहा मौजूद है स्ट्राइकिंग सर्कल। बहुत जबरदस्त माहौल यहाँ पे देख रहे हैं। देख लीजिए किस तरह से यहाँ पे एक्शन हुआ। ये उत्तर प्रदेश की स्टिक, बहुत तेज हिट, स्कोरिंग करने का इस वक्त यहाँ पर बाय फ्रेंच से बॉल लेकर आगे बढ़ते हुए महाराष्ट्र के खिलाड़ी अटैक करती हुई बाय फ्रेंच या डी के अंदर घुसने के लिए चाह रही है महाराष्ट्र के। यहाँ पर तालेब शाह के पास बॉल, तालेब शाह बॉल को निकालने की कोशिश, अच्छा पास की टीम। एक तरफ कहा जाए अनुभव, तो दूसरी तरफ युवा ब्रिगेड यहाँ पर उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी का बॉल। यहाँ पर अरुण शाही ने अपने साथी खिलाड़ी के लिए बॉल को बढ़ाया, बढ़िया पास विष्णुकांत सिंह के लिए। विष्णुकांत सिंह ने बॉल को बढ़ा दिया है गोपी कुमार यहाँ पर शिवम आनंद के लिए, और गेंद लेकिन बहुत तेज गति से निकल गई। फाइनल हुटर की आवाज, मुकाबला ड्रॉ पे यहाँ पे खत्म हुआ, 0-0। दूसरा क्वार्टर भी 0, तीसरे क्वार्टर में भी कोई गोल नहीं, और चौथा क्वार्टर भी गोल रहित। जबरदस्त कई मूव, कई पेनल्टी कॉर्नर्स और शानदार हॉकी। चंडीगढ़ और मणिपुर दोनों के मध्य ये मुकाबला। पहले चक्र की प्रारंभ हो चुका है, पहला चक्र प्रारंभ। स्टॉप की कमांड यहां पर, अंतिम 10 सेकंड शेष इस चक्र की समाप्ति में। 3-3 मिनट के 3 राउंड और 1-1 मिनट का विराम अंतराल होता है, रेस्ट पीरियड, इन 38वें राष्ट्रीय खेल मुक्केबाजी प्रतिस्पर्धा पिथौरागढ़ में जो कि खेली जा रही है। और दूसरा राउंड शुरू हो चुका है। स्टेट जैब के साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया, यहाँ पर प्रहार करने से कोई लाभ नहीं, आप अपनी ऊर्जा को व्यर्थ गवा रहे हैं। और ये दूसरा चक्र समाप्त हुआ, तीसरा और अंतिम निर्णायक चक्र। लगातार रेफरी द्वारा दोनों ही मुक्केबाजों को हिदायत दी जा रही है, सावधानी बरतें, नियमों का उल्लंघन करने पर आपको दंडित किया जा सकता है, वार्निंग दी जाएगी। अंतिम 5 सेकंड शेष, इस मुकाबले की समाप्ति की घोषणा होने ही वाली है और बेल हुई, और ये तीसरा और अंतिम निर्णायक चक्र यहां पर समाप्त हुआ। The winner by split point decision 1-2 in the red corner representing Chandigarh 5-2। स्वर्ण पदक विजेता हैं हिमाचल प्रदेश के आशीष कुमार रेड कॉर्नर में। और वहीं अगर हिमांशु की बात करें तो खेलो इंडिया में 2 बार स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं। लास्ट यहां पर वर्ल्ड ये द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित प्रशिक्षक दिखाई दी। और दूसरा राउंड यहां पर प्रारंभ हो चुका है।
प्रयास अच्छे हैं यहाँ पर, बिल्कुल बहुत ही सुंदर तरीके से प्रहार क्षमताओं को प्रयोग किया यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के मुक्केबाज ने। 4 मुक्केबाज, पहली बार नेशनल गेम में पुरुष भार वर्गों में 4 मुक्केबाज सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुके हैं। और नीरज भट्ट, और यहाँ पर अगला चक्र प्रारंभ होने जा रहा है। और ये देखिएगा सुंदर खेल प्रांगण, कितनी अच्छी सुंदर लाइटें और सारे साजो सामान जो हम कहते हैं एक अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जो दिखते हैं, वो साजो सामान, वो इक्विपमेंट, वो सारा रंग रोग बिल्कुल आश्वासन है। बिल्कुल नीरज भट्ट जो कि सेक्रेटरी जनरल दिल्ली एमेचर बॉक्सिंग एसोसिएशन के, उनके द्वारा ये सुनिश्चित है कि 3 स्वर्ण पदक वह अपने नाम करना चाह रहे हैं। और फिलहाल बात करते हैं इस मुकाबले की। तीसरा और अंतिम निर्णायक चक्र चल रहा है। बहुत ही सुंदर खेल कौशल का प्रदर्शन हुआ दोनों ही प्रदेशों की तरफ से। 5-0 से इस मुकाबले को अपने पक्ष में कर पाने में कामयाब हुए हैं हिमाचल प्रदेश के मुक्केबाज, जिन्होंने मध्य प्रदेश के मुक्केबाज को परास्त किया। चक्र प्रारंभ होने वाला है। अगर हम बात करें दिल्ली के मुक्केबाज की, कि वह गोवा में खेला था और शिवा थापा के साथ उसका मुकाबला हुआ था गोवा में वर्ष 2023 में। ऐसे नए मुक्केबाजों को भी अवसर प्रदान करते हैं ये 38वें राष्ट्रीय खेल जो कि उत्तराखंड में आयोजित हैं। इन खेलों का आयोजन ही इसी उद्देश्य से है कि नए अंकुरित मुक्केबाज जो हैं, खिलाड़ी जो हैं, वो आगे एक नया वट वृक्ष बने कि आपके द्वारा ये गलती की गई है। और एक अच्छे रेफरी की यही पहचान होती है और अगले चक्र में अंक अर्जित कर सकता है। ये देखिए कितने स्लो तरीके से हमारे कैमरामैन आप तक ये दृश्य लेके आ रहे हैं। लाइटिंग दिखाई जा रही है, इतना सुंदर दृश्य। प्रयास अच्छे हैं। यहाँ पर जो बॉडी पर प्रहार था, बहुत अच्छी बॉडी पर प्रहार करने की जो एक प्रक्रिया होती है, अपने पैरों को बैंड करना, अपनी एक लेग को आगे लेके जाना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से फोर्स को जनरेट करना और टोस पे रहना और फिर बॉडी पर प्रहार करना। सेना का मुक्केबाज का ये रणनीति बहुत अच्छी, बहुत ही बढ़िया। तीसरी बार काउंटिंग। अब ये मुकाबला नहीं लगता कि तीसरे राउंड में जाएगा, क्योंकि 3 बार काउंटिंग हो गई है, रेफरी द्वारा आरएससी कर दिया जाएगा। और रेफरी ने अपने हैंड क्रॉस किए, प्रदर्शित कर दिया यहाँ पे डिप्टी टीडी को कि ये मुकाबला अब आगे नहीं जाएगा। आरएससी इन अ सेकंड राउंड इन फेवर ऑफ सर्विस स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड। दिल्ली के मुक्केबाज को पराजय मिली है और फिलहाल निर्णय का इंतजार। गगन जो कि दिल्ली के मुक्केबाज हैं और उनको चुनौती दे रहे हैं असम के मुक्केबाज अभिनव। और पहला चक्र यहां पर प्रारंभ हो चुका है। दिल्ली और असम के मध्य ये मुकाबला खेला जा रहा है। दिल्ली के मुक्केबाज मिस्टर गगन लगातार प्रयासरत हैं। असम के मुक्केबाज मुकाबला छोड़ना नहीं चाहते हैं। स्ट्रेट जैब, देखिए बॉडी में प्रहार असम के मुक्केबाज के द्वारा। रणनीति बहुत अच्छी है। प्रयास बहुत अच्छे, बहुत ही सुंदर प्रहार क्षमता है असम के मुक्केबाज की। प्रत्युत्तर देना चाहा दिल्ली के मुक्केबाज ने, मगर असम के मुक्केबाज ने सारे पंच कनेक्ट किए हैं। लगातार प्रहार क्षमता है, बहुत ही सुंदर। और इसी के साथ दूसरा राउंड यहां पर समाप्त हुआ। और रेफरी का निर्देश स्टॉप का था। सर को उठाकर खेलें, असम के मुक्केबाज को यह निर्देश दिया गया। सावधानी बरतें। तीसरा और अंतिम निर्णायक चक्र यहां पर समाप्त हुआ। देखना होगा अब 5-0 से इस मुकाबले को असम के मुक्केबाज ने विजयी किया, दिल्ली के मुक्केबाज को परास्त किया। बहुत ही अच्छे खेल कौशल का उनका जो प्रदर्शन था वो अंतिम क्षणों तक भी जारी रहा।
ईबा स्टार 3 अंतर्राष्ट्रीय रेफरी जो कि महाराष्ट्र राज्य के रहने वाले हैं, दोनों ही मुक्केबाजों को नियमों से अवगत कराया और यह मुकाबला कुछ ही क्षणों में प्रारंभ किया जाएगा। लॉन्ग रीच का फायदा उठा सकते हैं रेड कॉर्नर के राजस्थान के मुक्केबाज, मगर उतना लाभ नहीं उठा पा रहे। उत्तराखंड के मुक्केबाज लगातार अपनी प्रहारक क्षमताओं को प्रदर्शित कर रहे हैं। बॉडी वेट जो है वो पूरा संतुलन बनाया हुआ है। फुटवर्क अगर देखें तो बॉडी वेट को जो साथ लेके जा रहे हैं वह स्ट्रेट जैब के साथ खेल रहे हैं। हालांकि पहला चक्र यहाँ पर समाप्त हुआ। थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस करते हैं और उनका जो गार्ड है वो भी ढीला हो सकता है, वो टूट सकता है, उनका चिन अप हो सकता है। और अगर इसी में हम थोड़ा सा एड ऑन करते हुए री अटैक अगर हम करें तो और भी अच्छा स्कोर करने में मुक्केबाज कामयाब होते हैं। अभी रणनीति अच्छी, बहुत ही बढ़िया प्रहारक क्षमता स्ट्रेट जैब के साथ। अंतिम 5 सेकंड शेष। अब यहां पर कोशिश कर रहे हैं राजस्थान के मुक्केबाज, शेल गार्ड हटा दिया। उत्तराखंड के मुक्केबाज का नुकसान है, ये शेल गार्ड लगाकर खेलेंगे तभी फायदा होगा। तीसरा और अंतिम निर्णायक चक्र देखना होगा अपने आप को फाइनल में कौन सा मुक्केबाज सुनिश्चित करता है, वो उनके लिए कारगर सिद्ध होगा। राजस्थान के मुक्केबाज शेल गार्ड दोनों ही मुक्केबाजों ने हटा लिया है। यहां पर शार्पनेस चाहिए आंख की कि जैसे ही प्रतिद्वंदी नजदीक आता है तभी प्रहारक क्षमताओं का प्रयोग करे। उत्तराखंड के मुक्केबाज ने वही चीज यहां पर दोहराई, लगातार प्रहारक क्षमता 3 या 2 पंचों का प्रयोग कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, काबिले तारीफ, और पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया उन्होंने इस मुकाबले को। और यहाँ पर इस तीसरे और अंतिम निर्णायक चक्र की समाप्ति के साथ ही बहुत ही हमारी सटीक भविष्यवाणी रही, लेकिन मैं राजस्थान के मुक्केबाज का भी हौसला अफजाई करना चाहूंगी। मध्य प्रदेश के पारस और दिल्ली के सोहित, जो कि दिल्ली के मुक्केबाज, मध्य प्रदेश के मुक्केबाज की लंबी कदकाठी है, लॉन्ग डिस्टेंस पर खेलेंगे। आगे रणनीति क्या रहेगी वो तो समय बताएगा। पहले चक्र में हर एक मुक्केबाज अपने आप को शायद अपने प्रतिद्वंदी के साथ स्ट्रेटेजी को सेट करता है। अंतिम 5 सेकंड शेष और रह गए हैं। 10 सेकंड था जैसे पता चला था, 5 सेकंड शेष हैं इस पहले चक्र की समाप्ति में। तो यहाँ पर थोड़ा सा और, तो जैसे कि अभी हमने पिछले चक्र में देखा, सोहित मुझे लग रहा है कि जहां चूक रहे हैं कि उन्हें बॉडी अटैक्स भी लेने चाहिए, क्योंकि उनके जो ओपोनेंट का जो टारगेट एरिया है बनिस्बत उनसे काफ़ी बड़ा है। तो मुझे लगता है कि अगर सोहित बॉडी से फेस पर स्टार्ट करेंगे तो काफ़ी अच्छा अंक अर्जित करने की कोशिश करेंगे। तब मध्य प्रदेश के मुक्केबाज ने बड़े ही आसानी से साइड स्टेप लिया, स्ट्रेट जैब किया और बाहर की ओर निकल गए। रणनीति बहुत अच्छी इस्तेमाल करी और फिलहाल इस चक्र की समाप्ति हुई है, दूसरे राउंड की समाप्ति हुई है। फिलहाल अगर हम बात करें इस मुकाबले की, तीसरा और अंतिम राउंड है, क्योंकि दिल्ली मध्य प्रदेश के मुक्केबाज के पास एडवांटेज है उनके लंबे कदकाठी का और लंबी आर्म रीच का। तो वो दूर से ही अपने पंचेस जो हैं अपने ओपोनेंट को के टारगेट एरिया पर लैंड कर पा रहे हैं। लेकिन काफ़ी जुझारू रूप से दिल्ली के मुक्केबाज ने इस मुकाबले में अपना प्रदर्शन किया और मैं आशा करती हूं कि भविष्य में जब भी वो किसी लंबे बॉक्सर के साथ अपना मुकाबला खेलेंगे तो इस बाउट का उन्हें काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा होगा। और यहाँ पर जैसा हम दोनों बातचीत कर रहे थे, मध्य प्रदेश के मुक्केबाज ने जीत सुनिश्चित करी और यहाँ पर दिल्ली के मुक्केबाज का विराम जरूर लगा। 5-0 से उन्होंने जीता इस मुकाबले को। ये मुकाबला 92 किलो भार वर्ग का होम ग्राउंड पे ये मुकाबला है। उत्तराखंड के मुक्केबाज को थोड़ा एडवांटेज भी है कि होम ग्राउंड पर और इसी रिंग पर उन्होंने ट्रेनिंग भी की होगी और जोश खरोश के साथ वो उतरे हैं रिंग में अपने ओपोनेंट के साथ, जो कि हिमाचल के मुक्केबाज हैं। चेतन की बात करें जो कि हिमाचल प्रदेश के मुक्केबाज हैं, वह यूथ नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता, एलिट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। जी बिल्कुल संजीव, और अभी दूसरे चक्र की शुरुआत होने वाली है और हम देख पा रहे हैं कि फिर से जो हमारे उत्तराखंड के जो मुक्केबाज हैं वो अटैकिंग में हैं। उत्तराखंड में ये मुकाबला होम क्राउड का जो सहयोग है वो एक टॉनिक की तरह से काम करता है। एक नई ऊर्जा का प्रवाह
मुक्केबाज के अंदर देता है, तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब मुक्केबाज खेल रहा होता है तो उसके मेंटल स्टेज, जैसे अभी आपने मनोवैज्ञानिक दबाव के बारे में बताया, तो यहाँ पर मनोवैज्ञानिक एक प्रोत्साहन मुक्केबाज के साथ रहता है। वो कहता है मेरा पूरा राज्य मुझे देख रहा है, तो मुझे अपने आप को प्रूव करना है, और एक अलग सी ही ऊर्जा मुक्केबाज में आ जाती है। क्या कहेंगे अमन? जी संजीव, मैं इसका थोड़ा सा जो है रिजेम्बलेंस एक सैनिक के माध्यम से आपको देना चाहती हूँ। एक सैनिक भले ही अकेला हो लड़ने के लिए, किंतु उसे पता है मुझे अपने देश के लिए कुछ करके मरना है, कुछ करके मरना है। बिल्कुल, मुझे अपने दिन याद आ गए। मैं लाइट फ्लाई वेट में ही खेला करता था। जिस वक्त मैं स्वर्ण पदक विजेता बना था, तो उस समय मैंने अपना वजन, अमन आप यकीन मानेंगी, 5 किलो वजन गिराया था। शैलगार्ड अब इस तीसरे चक्र में दोनों मुक्केबाज रख रहे हैं। हालांकि पहले चक्र से ही अगर अमन रखते तो शायद इसका परिणाम कुछ और होता, या रोचकता तो और बनी रहती, क्योंकि प्रहार होते हैं, प्रहार के साथ अपने आप को रोकना, मारना, आक्रमण करना एक मुक्केबाज की एक स्किल है, तो अपने आप को बचा के रखना, अपनी आत्मरक्षा करना, ये भी उत्कृष्ट श्रेणी में आता है। अनुमानित ही था कि 5-0 से जो हमारे रेड मुक्केबाज है उत्तराखंड के, वो विनर घोषित हुए हैं। और देखिए, बहुत ही अच्छी बात है हर स्पोर्ट्स में कि जैसे ही मुकाबला खत्म होता है तो हम ओपोनेंट से गले मिलते हैं।